Hello, everybody. Welcome back to Understand UPSC. My name is Satyam Jain, and we are here to discuss something which is important, close to my heart, and very relevant for the examination. So, what is it? It is a lot of discussion around the last 15 days. वैसे तो अभी कितने 17 डेज हैं, तो लोग बोलेंगे कि सर 2 डेज कम क्यों कर रहे हो, बट नहीं, मैं बेसिकली 15-17 है जैसे हिंदी में बोलते हैं. सो 15-17 days of the examination are there, and I want to discuss with you certain things that you must be doing and certain things that you should not be doing. ठीक है, तो बहुत छोटी सी वीडियो होगी, लंबी नहीं होगी. I'll try, but try to listen to me very carefully and imbibe these things and implement these things, क्योंकि ये directly help करेंगी. Okay, let us begin. This is the agenda of the video. We will be discussing about all this stuff. We will be discussing about how to revise, how to cover the backlogs if any, then should we give any mocks or something, then what is the relevance of PYQs during this period, how should a daily schedule look like in the past, like in the coming 15 to 17 days, what should be your mindset, how to organize yourself, sleep cycle and health, absolutely important. मैं पिछले 2-3 दिन में बीमार होकर देख चुका हूँ. And last and most important, the confidence, how to build it, how to be in that zone of confidence. Then this is something that we will deal at the end, how to deal with negative thoughts, anxiety, stress, mental pressure of examination, expectations and results, and this and that and this and that. ये पूरा का पूरा जो बंडल है, ये एक एस्पिरेंट की लाइफ डिफाइन करता है इस पर्टिकुलर पीरियड में. ठीक है, तो इस पे बात करेंगे, एक एक करके शुरू करते हैं. So let us begin with the PYQs first. Why are we beginning with PYQs? Because ultimately we all know that now is the time to build the UPSC level mindset or the exact UPSC replica mindset. And how can that be built? That can be built best by the PYQs. वो सबसे अच्छा PYQ से build होता है. Okay? Understood? Now, to do this, what you have to do is, or what I used to make my students do in the earlier days as well, you have to attempt a UPSC paper daily. Now it depends upon your time if you want to give GS plus CSAT both, or if you just want to give one of them per day. Okay, you have to attempt one UPSC paper daily. So I'm giving you a schedule. Now there is a link in the description on which you will find our Android application by the name of Understand Exams. Our application by the name of Understand Exams. Okay, you will download this and you will find that we have uploaded 13 years of UPSC paper of both GS and CSAT in both the languages, English and Hindi. Okay, हिंदी वालों, ठीक है, हो गया अपलोड. सो वी हैव अपलोडेड. भाई बहुत यार हिंदी वाले बहुत बेचारे, मेरे को जब मैं नहीं कर पाता हूँ ना उनके लिए कुछ, तो मेरे को बहुत ख़राब लगता है. बट दिस टाइम वी आर एबल टू डू इट. येस, we are able to do it this time. You will be able to attempt the UPSC, CSC, Prelims, GS and CSAT paper of 13 years in both English and Hindi on the UPSC pattern, on the UPSC lines, on the UPSC key at the Understand Exams application. ठीक है? Now, how do you have to attempt it and what do you have to take care of? See, so the first thing is that after you are done with the paper, so the first thing is that whenever you are attempting a GS paper on the application, what you will do is that you will attempt it exactly in the UPSC timings, which is 9:15 to 11:15. इसी टाइम के बीच में आपको पेपर अटेम्प्ट करना है. इवन इफ इट इज टेकिंग लाइक 1 hour 40 minutes, इट्स ओके, बट वो होना इसी टाइम के बीच में चाहिए. इससे क्या होगा, that your brain will start becoming active, your brain will be active during this particular period. Similarly, whenever you are doing the CSAT paper on the application, you will do it again as per the UPSC timings, which is again nearly 2:15 to 4:15. और वैसे तो इससे भी थोड़ा लेट ही होता है, बट स्टिल क्योंकि ये पीक गर्मी का भी टाइम है, सो आई वॉन्ट यू टू अटेम्प्ट द पेपर इन दीज टाइम्स. अगेन योर ब्रेन विच इज़ वेरी वेरी डल इज दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ, मतलब ये दिन का वो हिस्सा होता है जिसमें एस्पिरेंट सबसे ज़्यादा लेजी होता है, सबसे ज़्यादा सोने का मन करता है उसका. बट यू हैव टू अटेम्प्ट द CSAT पेपर एक्जैक्टली इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. Now, coming to the next thing. So now what do we have in our hand? We have 17 days. Okay? There are 2 ways to do the PYQs. अगर आप रोज़ एक सेट लगाना चाहते हो तो आपके लिए बहुत आसान है. You start on 31st or you start on 1st of June, किसी भी दिन start करो, and then you attempt 1 GS and 1 CSAT for
सम पर्टिकुलर डेज, ठीक है, जितने भी आपको अटेम्प्ट करने हैं, लाइक स्टार्ट इन द रिवर्स ऑर्डर। जैसे ऐसे मान लो 2013 से स्टार्ट कर रहे हो सपोज, तो 2013 पहले, फिर 14, 15, 16 ऐसे करके करना है। इफ़ यू डू नॉट वांट टू डू दिस, अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार दिन के 4-5 घंटे रोज नहीं दे पाऊंगा, सो इंस्टेड व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन डू 1 GS एंड 1 CSAT ऑन ऑल्टरनेटिव डेज। सो इसका मैं आपको प्लान समझाता हूँ कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल ऑन द 31st ऑफ मे, लेट अस सपोज कि हम 31st से शुरू कर रहे हैं, कोई कल से शुरू करना चाहते हो तो कल से भी कर सकता है, यू कैन बिगिन फ्रॉम टुमारो, है ना, 30th से भी बिगिन कर सकते हो, दैट विल बी इवन बेटर। ऑलराइट, सो व्हाट यू विल डू इज मॉर्निंग में 9:30 से 11:30, ठीक है, यू विल अटेम्प्ट द GS का पेपर। देन ऑन द नेक्स्ट डे GS 2018 या 17 भी कर सकते हैं, अभी के लिए चलिए मैं 18 बता देता हूँ, ठीक है, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 into 2, 12 days, है ना, you will have 12 days to like attempt these 6 papers and these 6 papers are very close to the UPSC pattern that is being followed in these days। 17 का भी था, काफ़ी क्लोज था, तो आप चाहें तो इसमें वो भी इंक्लूड कर सकते हैं, आपका 14 डेज का पूरा पैकेज बन जाएगा ये। ओके, सो अगर आप कल से शुरू कर रहे हैं, 30th से शुरू कर रहे हैं, तो आप 12 तक इसको पूरे को, इन 7 साल के पेपर को फ्रॉम 2017 to 2023 पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? नाउ देयर इज अनदर थिंग दैट एक दिन एक किया, एक दिन एक किया, ऐसे करके डेली आपको अटेम्प्ट करना है। देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन कम इन विच एवर ग्रुप यू आर, और यू कैन कम इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड टेल मी योर स्कोर्स डेली। तो आप इस वीडियो पे वापस आते रहो, ठीक है, ग्रुप में भी बताओ, इसी वीडियो पे आते हैं और आप अपने स्कोर बताओ, आपका एक्सपीरियंस बताओ कि कैसा है, आपको क्या लग रहा है पेपर अटेम्प्ट कर करिए, आर यू फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट। अगर आपने मैट फॉलो किया, अगर आपने PYQs फॉलो किए, PYQs किए हैं खुद से, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंट लगेगा वंस यू विल बी डूइंग दिस। इससे आप UPSC माइंडसेट में आओगे, इससे आप मॉक वाले माइंडसेट से दूर चले जाओगे, इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, इससे आपको अपनी प्रिपरेशन की समझ आएगी। सो बहुत बेनिफिट होगा ये करने से, दिस इज एक्चुअली हेल्पफुल। ठीक है, समझ आ गया? इसके बारे में कोई भी डाउट है? अगेन आई एम रिपीटिंग, इंग्लिश में है, हिंदी में है, हाँ, बट यू कैन अटेम्प्ट 1 पेपर ओनली वंस। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, आप एक पेपर अभी के लिए एक ही बार अटेम्प्ट कर सकते हो। आगे वी माइट थिंक ऑफ लाइक इंक्रीजिंग इट, बट अभी के लिए फॉर दिस प्रीलिम्स दिस विल बी जस्ट 1 पेपर 1 टाइम। डन? क्लियर? सॉर्टेड इन दिस पर्टिकुलर थिंग। इस वीडियो के कमेंट्स में आके डेली बताना है कि आज ये पर्टिकुलर पेपर अटेम्प्ट किया, ये स्कोर हुआ और ये समझ में आया। तो यहाँ पे आपका सारा मैड का एप्लीकेशन सब कुछ दिख जाएगा। नाउ सम पीपल फियर कि हमें तो आंसर याद था। डोंट वरी अबाउट दीज थिंग्स, भाई आपको कोई लेना देना नहीं है आंसर से। आप उस पर्टिकुलर मोमेंट पे बैठ के देखो कि आप सही दिमाग लगा पा रहे हो कि नहीं लगा पा रहे हो। एंड इफ यू आर रीचिंग टू द आंसर दैट्स ओके, इफ यू आर नॉट रीचिंग टू द आंसर इन सम क्वेश्चंस दैट्स ओके। एक दूसरा तरीका क्या होता है कि यू कैन थिंक इस तरीके से कि व्हाट इफ दिस क्वेश्चन अपीयर्स इन द एग्जाम इन फ्रंट ऑफ मी, हाउ विल आई सॉल्व इट देन। एक तरीका ये भी हो सकता है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड वे टू गो अबाउट इट कि मैं इसमें मैड अप्लाई करूंगा कि नहीं करूंगा, मेरी इसमें नॉलेज काम आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इससे ना आपका बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि इवन इन द वर्स्ट केस सिनेरियो आई एम लाइक गेटिंग दिस मच ऑफ स्कोर। तो ये फायदा होगा इस चीज़ से। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? मैं दोबारा रिपीट वो वाली बात कर देता हूँ। अंडरस्टैंड एग्जाम्स नाम से, एग्जाम्स है ना, अंडरस्टैंड एग्जाम्स नाम से एंड्रॉइड एप्लीकेशन मिल जाएगा आपको, वहाँ पे जाके पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। बैनर भी दिख जाएगा आपको ऊपर। सेकेंड इज कि अगर कोई iOS वगैरह चलाता है तो माई इंस्टीट्यूट ऐप है, माई इंस्टीट्यूट, वहाँ पे जाके आप उसको डाउनलोड कर लो। वहाँ पे आप कूपन बोल रहा हूँ, और ऑर्गेनाइजेशन कोड मांगेगा वो आपसे, आपको यूज़ करना है ZAHZEO। ठीक है, जस्ट यूज़ दिस कूपन कोड एंड यू विल बी सॉर्टेड। कूपन कोड बोल रहा हूँ फिर से, जस्ट यूज दिस ऑर्गेनाइजेशन कोड एंड यू विल बी सॉर्टेड। ठीक है, ये एंड्रॉइड के लिए, ये iOS के लिए। क्लियर हो गई बात? एकदम समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट थिंग। नाउ कम्स द मॉक्स। तो अब देखिए, वैसे तो आपको मॉक्स वगैरह देने की जरूरत नहीं है, बट सिंस वी हैव ऑलरेडी प्लान्ड 1 मॉक फॉर यू, दैट मॉक विल बी कंडक्टेड ऑन 1st of June। 1st of June सैटरडे हम आपका एक सिमुलेटर मॉक कंडक्ट करेंगे, ऑल इंडिया लेवल सिमुलेटर मॉक कंडक्ट करेंगे। वी हैव अगेन ट्राइड टू इम्प्रूव द क्वालिटी वेरी अमेजिंगली। बहुत इसलिए बहुत वक्त ले लिया, इसलिए हमने पिछले हफ्ते पेपर कराया ही नहीं, ताकि बैठ के अच्छे से वक्त लेके पेपर बनाया जा सके, उसको फाइनल किया जा सके। सो ऑन 1st of June सैटरडे अब हमें ये देखना है कि हम आपको PDF देंगे या हम आपको एप्लीकेशन पे बोलेंगे अटेम्प्ट करने के लिए, वो हमारे ऊपर है। जिस तरीके से हमें सूटेबिलिटी लगेगी हम आपको बता देंगे। बट फॉर दिस यू विल हैव टू ज्वाइन द अंडरस्टैंड UPSC टेलीग्राम चैनल, क्योंकि अब अपडेट वहीं पे आएगा। सो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है अंडरस्टैंड UPSC के टेलीग्राम चैनल का। जस्ट ज्वाइन दैट एंड इफ यू वांट टू अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर पेपर यू कैन डू दैट। ओके, ठीक है, इसको भी अगेन हम UPSC पैटर्न पे रखेंगे, तो अगेन आपका थोड़ा सा टेस्टिंग वहाँ पे भी हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? चलें आगे बढ़े।
ठीक है, तो इसके अलावा अब आपको मुझे नहीं लगता कि और मॉक्स वगैरह देने की ज़रूरत है ना। हम हर कोई यही बोलता है लास्ट के 15 डेज़ में मॉक्स नहीं देने चाहिए, इसीलिए मैं भी इसको 1 जून को कंडक्ट करा रहा हूँ, ताकि इसके बाद 15 दिन आपके पास सीधा सीधा बच जाए, आपको उसमें कोई मॉक देने ना पड़े। हाँ, GS सेट दोनों होगा बिल्कुल, ठीक है। ये चीज़ क्लियरिटी से समझ में आ गई, एकदम डन। चलें बढ़ें आगे, चलिए नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट थिंग विच इज़ रिविजन। इस टाइम पे अगर सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है तो वो है आपका रिविजन, ठीक है। PYQs एक पिलर हो गया, दूसरी पिलर जो आपकी प्रिपरेशन की इस पर्टिकुलर मोमेंट पे बनेगी, इन दिनों पे बनेगी, वो होगी रिविजन। व्हाट डू आई मीन बाय दिस? देखिए, अगर इस टाइम आप सही से अच्छे से रिवाइज करते हो तो आपने जो अभी तक पढ़ा था आपको वो सारा का सारा एग्जाम में इंप्लीमेंट करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। सेकेंडली, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहेगा, क्योंकि एग्जाम में जब इंसान जाता है ना तो कॉन्फिडेंस की होता है, तो आप बार बार खुद को बोलोगे यार 4 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, 5 बार पढ़ लिया, मेरे से ही तो होगा, मेरे से नहीं होगा तो किससे होगा, मैंने तो कौन बे, मतलब समझा रहा हूँ। सो द पॉइंट इज कि बहुत हेल्प करता है रिवीजन ऐसे टाइम पे। आपके लूप होल्स जितने भी हैं रिवीजन फिल करेगा, आपके जो फैक्ट्स जो आपको दिमाग में रखने हैं रिवीजन से आएंगे, ओके। सो प्लीज फोकस ऑन रिवीजन। नाउ हाउ टू डू इट, दैट इज अगेन एन इंपॉर्टेंट थिंग। रिवीजन कर दिया बोल के इनफ नहीं होगा, हाउ टू डू रिवीजन, आपको रिवीजन करना कैसे है। सो देखो, अगर आप ऑलरेडी वो YPLP का हाई राइज का प्लान फॉलो कर रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं कर रहे हो तो व्हाट यू हैव टू डू इज, या तो एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स उठाओ और इनको टोटल 4 दिन दो, ठीक है। एक प्लान तो ये होता है। दूसरा होता है एक दिन में 1 सब्जेक्ट उठाओ और इसको टोटल 2 दिन दो। बात समझ में आ रही है? ईदर 1 डे and 2 subjects for a total of 4 days, or 1 day 1 subject for a total of 2 days. So इससे क्या होगा, when you will be fixing this particular time for yourself ना, अब इसमें मान लो टोटल आप एक दिन में GS वगैरह को सपोज करो 6 घंटे दे पाए, ओके, GS पढ़ने को, तो 2 दिन में हो गए मान लीजिए 12 घंटे। सो नाउ यू हैव 12 hours to revise this entire subject. तो इससे क्या होगा ना, आप फालतू की चीज़ पढ़ोगे ही नहीं। Whatever you will read will be only what is relevant for the examination, which is high yielding for the examination at this particular point of time. Again, you do not have to again go word by word, line by line, ऐसे नहीं करना है। Rather what I'll say is, उठाओ PYQs लगा लो एक बार, ठीक है। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के PYQs लगाने में 2 घंटे लगते हैं, उठाओ PYQs लगा लो उस सब्जेक्ट के। Once you are done with the PYQs, what next? एक बार PYQ हो गए, फिर उस सब्जेक्ट को खोलो और देखो कि यार किस किस पोर्शन से कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, और उसी को बस रिवाइज करो। पढ़ना नहीं है, अब पढ़ने का टाइम गया, अब पढ़ना नहीं है। जितना पढ़ लिया उतने पेपर क्लियर हो जाता है। वैसे भी 30 क्वेश्चन आते हैं जो सबको पता होते हैं, बाकी वहीं बैठ के सॉल्व करने, तो पढ़ने की टेंशन नहीं है, रिवाइज करो, ठीक है। प्लानर बनाओ एक ये। इससे क्या होगा, इससे एक बात समझो कि अगर एक सब्जेक्ट पर 2 दिन के एवरेज से जाओगे तो अगले 5 दिन के आसपास में जो 5 मेजर सब्जेक्ट्स हैं आपके, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं आपके, ज्योग्राफी है ना, ये 5 जो सब्जेक्ट्स हैं ये अगले 10 दिन में कंप्लीट कर लोगे, तो लास्ट का 1 वीक, लास्ट के 7 डेज आपके पास फिर बच जाएंगे एक राउंड ऑफ रिवीजन मारने के लिए। क्लियर हुई बात? ये बात समझ में आ गई सबको? ये मैथमेटिक्स समझ में आया? 1 सब्जेक्ट 2 days, there are a total of nearly 5 important static subjects, so this will be done in 10 days. You already have 17 days in hand, so if you implement this from tomorrow, at the end you will be left with 7 days, that is an entire week to revise these things again, right? But do not think कि इसमें मैं ना पूरे की पूरी बुक रिवाइज करूंगा। Don't do that, it is not required at this particular point of time. What is required is what you have read, you just have to revise it quickly so that you are glancing through it. आपको देखते देखते याद आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे ये गलती करता है, अच्छा यहाँ पे ये होता है, अच्छा यहाँ पे ये होता है, ये फैक्ट दिया, इस तरीके से रिवीजन होगा। देन इन लास्ट के 7 डेज में एक रिवीजन और कर लेंगे चीज़ों का। भाई फिर क्यों नहीं होगा, फिर पेपर में क्यों नहीं चीज़ें याद आएंगी, आप सोच के बताओ, सब याद आएगा। ओके, ये स्टैटिक की बात हो गई ना। लेट्स कम टू रिवीजन ऑफ करंट अफेयर्स। सो मैंने हमेशा बोला यार, यूपीएससी प्रीलिम्स में ना करंट अफेयर का लिमिटेड रेलेवेंस होता है, क्योंकि या तो करंट अफेयर से डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, और जो इनडायरेक्ट आते हैं वो स्टैटिक से लिंक होकर आते हैं। तो वो स्टैटिक का ही पार्ट आप कवर कर रहे हो रिवीजन में, बट अगेन जितना करंट अफेयर पढ़ा है वो रिवाइज करेंगे। सो मेरा मानना यही है कि आप अगर आपने मंथली मैगजीन की है तो 1 मंथली मैगजीन पर डे रिवाइज करते जाओ, ठीक है। या तो ये अगर आपने 365 वगैरह की हैं तो अगेन जैसे मान लो पॉलिटी की है 1 दिन में हो जाएगी, इकोनॉमी की है 2 दिन में हो जाएगी, एनवायरनमेंट की है 2 दिन में हो जाएगी, IR की है 1 दिन में हो जाएगी, तो इस तरीके से करके
इंपॉर्टेंट जैसे यही है, साइंस हो रह गई, साइंस की है वो 2 दिन में हो जाएगी, है ना। साइंस ये सारे हमने करा भी दिए हैं, ये 5 हमारी डन भी है। एनवायरनमेंट के कुछ पेजेस बचे हैं, ठीक है, उसमें से वैसे भी इंपॉर्टेंट हिस्सा कुछ है नहीं, आप मार्क PDF आपको मैं दे भी दूंगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं। बट खैर, कमिंग टू द पॉइंट दैट ये 5 सबसे इंपॉर्टेंट है, अपडेटेड से भी इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। या तो मंथली किया है तो बात अलग है, अगर 365 कर रहे हो तो ये 5 सबसे इंपॉर्टेंट है। ये 8 दिन में आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। 9 लगा लो ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो टाइम नहीं लगेगा। तो 8-9 दिन में आप एक बार करंट अफेयर भी रिवाइज कर पाओगे। अगेन, जितना पढ़ाया है, जितना बताया, जो इंपॉर्टेंट बताया उतना ही करना, बहुत ज़्यादा दिमाग में चीज़ें मत स्टोर करना, क्योंकि करंट अफेयर का जो रेलेवेंस है वो लिमिटेड है। रेलेवेंस ज़्यादा किस चीज़ का है? स्टैटिक का है, तो वहाँ पे फोकस ज़्यादा करना। गॉट इट? क्लियर? समझ में आ गई बात? अच्छा हाँ, एक बात पे और वापस आता हूँ, ये जब टेस्ट वगैरह दोगे ना, जब भी मॉक्स वगैरह दोगे, तो आपको बाद में वो सब दिखेगा, इसमें पूरा प्रॉपर एनालिसिस कि आपने किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस गलत किए। अच्छा हाँ, एक चीज़ तो बतानी मैं भूल गया। सो देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ सॉल्यूशंस। तो हमने क्या किया है कि हर एक पेपर के, हर एक UPSC प्रीवियस ईयर पेपर के डिटेल्ड सॉल्यूशंस, हर एक क्वेश्चन के डिटेल्ड सॉल्यूशंस, ये कितनी इंपॉर्टेंट बात बतानी भूल गया मैं, डिटेल्ड सॉल्यूशंस भी एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिए हैं। सो एज सुन एज यू आर डन सॉल्विंग द पेपर, यू विल हैव द डिटेल्ड सॉल्यूशन ऑफ एवरीथिंग। तो ये चीज़ बहुत ही शानदार काम करती है CSAT में। GS तो चलो आपने इतनी बार कर लिया है, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है देख लिया, बट CSAT का सॉल्यूशन ही मिल गया आपको, ये मान लो आप पिछले 10-12 साल का। तो जिन लोगों को CSAT में इश्योर, उनके लिए तो गोल्ड है ये। समझ आई बात? तो ये चीज़ कर लो, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा रहेगा, बहुत फायदे में रहोगे, रेदर देन गोइंग फॉर एनीथिंग एल्स, डू दिस। ठीक है, वापस आते हैं, ये बात समझ में आ गई। नाउ लेट्स कम टू बैकलॉग्स। देखो यार, बैकलॉग एक ऐसी चीज़ है जो सबके होते ही हैं। रिवीजन चाहे सबका ना होता हो, सिलेबस कंप्लीट चाहे सबका ना होता हो, कुछ भी है, बैकलॉग सबके होते हैं। आप मेरे देख लो, मेरे खुद के लेक्चर के बैकलॉग हो रखे हैं। इतनी मेहनत, इतना काम करने के बाद भी लेक्चर के बैकलॉग हो रखे हैं। ऐसे आपकी पढ़ाई में भी सारी मेहनत, इतनी मेहनत कर रहे हो आप, उसके बाद भी बैकलॉग हो गए होंगे। देयर ऑलवेज बी सम बैकलॉग्स, इट्स ओके। अभी आपको क्या करना है कि डेली आप एक तो बैकलॉग्स को ना, ये देखो एक्चुअली में कि वो फोमो वाले बैकलॉग्स हैं या फिर एक्चुअल बैकलॉग्स हैं, इसमें डिवाइड कर लो पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई फोमो वाले बैकलॉग है कि यार वहाँ पे एक वो PDF पड़ी है यार, वो देखनी है, अरे यार वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने वो नहीं पढ़ी आज तक, रहने दो, क्या हो गया इतना, ठीक है, नहीं करोगे कोई बात नहीं। क्या 50 क्वेश्चन उसी PDF से आने हैं, जादू मंतर है? तो फोमो वाला है कि एक्चुअल बैकलॉग कैसे होता है कि मान लो आपने सपोज करो एंशिएंट हिस्ट्री रिवाइज नहीं की है ना 2-3 महीने से, ये एक एक्चुअल बैकलॉग है, तो इसको अब कर लेना है, राइट? इसको अब कर लेना है। कैसे कर लेना है? दिन का 1 आवर अपने बैकलॉग को डेडिकेट कर दो। और ये मेरा तो मानना है कि दिन का सबसे पहला घंटा कर दो। सुबह उठे फटाफट, उस टाइम क्या होता है कि ब्रेन ना एक्टिव होता है, एक्टिव हो रहा होता है, तो हम ना टाइम वेस्ट करते हैं उस टाइम पे। ये नहीं करना है। 1 घंटा सुबह उठे, फटाफट जो भी बैकलॉग लग रहा था वो सब्जेक्ट उठाया, फटाफट पलटा, रख दिया साइड, डन। अब अपना दिन शुरू करो। फिर फटाफट टेबल पे आए, पेपर अटेम्प्ट किया 9:30 से 11:30 के पोर्शन में, फिर अपना पढ़ाई पे लग गए, GS पढ़ा, CSAT पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, करंट अफेयर्स रिवाइज कर लिया, एंड डन। फिर नेक्स्ट डे उठाया, बैकलॉग किया। दिस शैल लुक लाइक योर डेली शेड्यूल। अभी आगे बताऊंगा भी, बट इस तरीके से 1 घंटा। मैं सच बता रहा हूँ, 3-4 दिन में इतने बैकलॉग नहीं होते हैं जितने हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं। यार स्टैटिक के रिवीजन का तो कोई बैकलॉग है नहीं ना, वो तो मैंने अभी आपको बता दिया कैसे कवर करना है, पूरा का पूरा स्टैटिक ही। 5-6 जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो कैसे कवर करने मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। गॉट इट? बात समझ में आई? जब से हीट स्ट्रोक हुआ है मैं बीच बीच में पानी पीने लगा हूँ। आपको भी यार बहुत ध्यान रखना है, आई टॉक अबाउट दैट एज वेल, बट बहुत ध्यान रखना है तबीयत का। नाउ कमिंग टू द डेली शेड्यूल। तो डेली शेड्यूल में सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आगे मैंने लिख रखी है वैसे, स्लीप साइकिल, बट मैं यहीं पे ऐड करूँगा। तो स्लीप साइकिल इज समथिंग दैट यू हैव टू एडजस्ट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। हैव टू एडजस्ट। भाई मेरे को नहीं पता, आप एक दिन नहीं, अगर आप ऐसा है कि सुबह बहुत लेट सोते हो, है ना, मतलब रात को बहुत लेट तक जगते हो, तो एक दिन मत सो फिर, या दिन में सिर्फ 1 घंटा सो, जल्दी उठ जाओ, अलार्म लगा के उठ जाओ, और फिर अपने रात को टाइम से सोना शुरू करो। शिफ्ट योर स्लीप साइकिल एट एनी कॉस्ट। ओके, शिफ्ट योर स्लीप साइकिल। मैं एक टाइम तक इस चीज़ में नहीं मानता था, बट दैट वाज माय पर्सनल ओपिनियन। मैंने बहुत बच्चों का सुना है कि उनके लिए स्लीप साइकिल का इशू होता है, और ये बात सच भी है। अगर आपका ब्रेन एक सर्टेन टाइम पे एक्टिव नहीं है तो वो तुरंत एक्टिव एक दिन में नहीं हो जाएगा, तो ये बात सच भी है।
ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू प्लान समथिंग लाइक दिस कि आप रात को 11 बजे तक सो जा रहे हो, ठीक है, सुबह 6 बजे तक उठ जा रहे हो। 7 घंटे बहुत ही होते हैं 7 घंटे तो सोने के लिए, ठीक है। अगर इसको 10 से 5 भी कर सकते हो, 12 से 7 भी कर सकते हो एट मैक्स, इसके ऊपर तो जाना ही नहीं है। 11 भी वैसे तो अपर लिमिट होनी चाहिए, बट इन केस समबडी इज़ वेरी, ट्राई करना है कम ही करने का, है ना, 11 की तरफ ही आने का ट्राई करना है अगर 11 से ऊपर जा रहे हो तो। देन सुबह सुबह उठते जैसे मैंने बोला 1 घंटा अपना कोई फैक्चुअल स्टफ रिवाइज कर लो, है ना, नेशनल पार्क रिवाइज कर लिए, प्रोटेक्टेड एरियाज रिवाइज कर लिया, रिवर्स रिवाइज कर ली, है ना, एनवायरमेंट की कुछ चीज़ें रिवाइज कर ली, कुछ भी, है ना, पॉलिटी का कुछ अगर रिवाइज करना है, फैक्चुअल टाइप की चीज़ पहले दिन बना के रख लो कि मेरे को अब ये रोज़ 1-1 घंटा एंशिएंट इंडिया का कुछ रिवाइज कर लिया, रोज़ मेरे को 1-1 घंटा उठा के फैक्चुअल स्टफ रिवाइज करना है, ठीक है, ये बना के रख लिया। 1 घंटा हो गया, सपोज करते हैं लेके चलते हैं कि आप 6 बजे उठे, ठीक है, 6 बजे उठे, 10-15 मिनट पढ़ने बैठे, 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ो ढंग से, है ना। फिर 15 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन, ये बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है आपको यार, बहुत फोकस चाहिए, मैंने 1000 बार बोला है, फोकस इन द एग्जामिनेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर मार्क्स। Focus in the examination will be directly proportional to your marks, and this focus will be improved by this 15 minutes of simple sitting, breathing, focusing on breathing। जैसे ध्यान इधर उधर जाए, breathe करो वापस। Please do this, okay? It will keep you calm, it will keep you composed। 15 मिनट ही मांग रहा हूँ, दिन का बहुत बड़ा हिस्सा नहीं मांग रहा हूँ, 15 मिनट वेस्ट नहीं कर दोगे दिन में। ये मान लो कि मैं 15 मिनट वेस्ट कर रहा हूँ सत्यम सर के कहने पे, बस 15 मिनट वेस्ट कर दो मेरे कहने पे, बट कर लो इसको भाई, एक्चुअली में हेल्प करता है। इतने क्वेश्चंस होते हैं, बच्चे बोलते हैं सर पूरा पढ़ा नहीं था पेपर, ये दिखा ही नहीं, ये वाली लाइन तो दिखी ही नहीं सर, फोकस की कमी है वो, है ना, उसको इंप्रूव करेंगे हम, ठीक है। हमारे पास अच्छा खासा टाइम है अभी, 2 हफ्ते से क्या 2.5 हफ्ता है, बहुत टाइम होता है 2.5 हफ्ता, ठीक है। फोकस इंप्रूव करेंगे इस चीज़ से। उसके बाद आप अपना डेली का काम कर सकते हो, नहाना धोना सब करो, गेट रेडी, ठीक है, गेट रेडी, हैव योर ब्रेकफास्ट लाइट, थोड़ा ब्रेकफास्ट वही मतलब टुवर्ड्स, हमेशा नाउ टुवर्ड्स फ्लूइड्स, योर फोकस शुड बी कि ठीक है कुछ खाया, लाइट खाया और फ्लूइड्स लिए, है ना। वाटर में सुबह सुबह पानी में ORS डाल के रख लो, पियो उसको, इलेक्ट्रॉल डाल के रख लो, पियो उसको, कंज्यूम लिक्विड, इट विल कीप यू हाइड्रेटेड, इट विल कीप योर ब्रेन फंक्शनिंग। जितने सॉल्ट्स हैं ब्रेन में जाएंगे, फंक्शन करेगा ब्रेन अच्छे से। गॉट इट, बात समझ में आई ये वाली, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद जैसे ये किया, देन सिट विद योर पेपर, ये आपका 9 बजे तक सब डन हो जाना चाहिए। आप अपना पेपर लेके बैठो, अटेम्प्ट करो, अगर दे रहे हो उस दिन तो, अगर नहीं दे रहे हो अपना GS लेके बैठो, रिवाइज करना शुरू करो, ठीक है। फिर अगले 3-4-5 घंटे वही करना है। फिर आ गई CSET की सिटिंग। अगर CSET कर रहे हो बहुत बढ़िया, मतलब उस दिन CSET का पेपर दे रहे हो बहुत बढ़िया, नहीं दे रहे हो तो CSET पढ़ो, ठीक है। फिर CSET खत्म हुआ, अब उठाओ थोड़ी देर के लिए करंट अफेयर, बीच बीच में अपना लंच वंच का ब्रेक एडजस्ट कर लेना। जैसे GS की सिटिंग खत्म हुई, लंच कर लिया, CSET की सिटिंग खत्म हुई, नैप ले ली। CSET की सिटिंग से पहले नैप की आदत मत डालना, ओके, और डालोगे तो फिर एग्जाम में ले लेना, मतलब, लेकिन आपका ब्रेन उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक्टिव होना चाहिए। तो अब आपको हर चीज़ उस दिन के हिसाब से सोचनी है कि मैं रोज़ वही करूँगा जो मैं उस दिन करूँगा, ऐसे सोचो रोज़, तो एकदम कस्टम हो जाओगे, हैबिचुअल हो जाओगे चीज़ों को लेके। क्लियर, गॉट इट, बात समझ में आ गई। देन लास्ट में आपका करंट अफेयर रिवाइज किया, ओके। फिर अपने अगर कुछ PYQs लगाने हैं या फिर कुछ रिवाइज करना है स्टफ GS की सेकंड सिटिंग लगानी है, सेकंड सब्जेक्ट लगाना है, वो क्या रात में, और अपना सो गए। दिस इज हाउ योर डे शुड लुक लाइक, ओके। ये बात समझ में आ गई, आई होप सबको स्लीप साइकिल वाली बात समझ में आ गई। देन हेल्थ मैंने उसमें इंक्लूड कर ही दिया। इस टाइम पे भाई बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बीच बीच में बारिश हो रही है कुछ एरियाज़ में इंडिया के, सो सब मिक्सड अप है। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, एब्सोल्युटली, ये टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। मैंने आज बोला भी था वॉइस नोट में, हम स्टूडेंट फेज़ में, बात वही है ना, मिडिल क्लास के बच्चे हैं, घर से बाहर रह रहे हैं या फिर घर पे भी रह रहे हैं, स्टूडेंट फेज़ में है, पैसा खर्च करना नहीं चाहते, हर जगह से पैसा बचाना चाहते हैं, तो पानी पी के काम चला लेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, ORS का पैकेट खरीद के नहीं लाएंगे, इलेक्ट्रॉल का पैकेट खरीद के नहीं लाएंगे, है ना, कोई जूस नहीं पियेंगे। भाई अगले 15 दिन में ना इन सब पे मिला के भी आप 500 रुपये खर्च नहीं करोगे, 500 से 700 रुपये खर्च हो भी जाएंगे, कोई बात नहीं, मेरे कहने से मान जाओ ये बात, 500-700 रुपये खर्च हो जाएंगे, कोई बात नहीं, ठीक है, इट्स ओके। एक बार की दवाई इससे दुगने रेट की जाएगी, और जो दिमाग खराब होगा वो अलग। सो आई अंडरस्टैंड दैट माइंड सेट, मैं खुद उसी माइंड सेट से गुजरा हूँ, मैं कभी नहीं खरीदता था, कभी नहीं करता था, बट ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, बहुत ही ज़रूरी है यार, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। आपको एग्जाम ऐसी हीट कंडीशंस में देना है, इसलिए अपनी बॉडी को उसके लिए प्रिपेयर करो अभी से।
और वो प्रिपेयर ऐसे नहीं कि हम गर्मी में रह के प्रिपेयर करेंगे, अच्छे फ्लूइड्स लेके, ताकि आपका ब्रेन रोज एक्टिव रहे, लेथार्जिक ना हो जाए, एग्जाम के पास जाते जाते इशू ना हो कुछ, तो इसलिए अच्छे फ्लूइड्स लो, ढंग का खाना खाओ। डन, बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट भाई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे को इस सबसे ज़्यादा दिक्कत ये करता था, होता क्या है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हर जगह ना कुछ चल रहा है, यूट्यूब पे कुछ वीडियोस आ रही हैं, एप्लीकेशंस पे कुछ हो रहे हैं, टेलीग्राम पे कुछ हो रहा है, किसी के ब्लॉग पे कुछ हो रहा है, और मन करता है कहीं किसी ने कुछ क्वेश्चंस डाल दिए, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मन करता है मैं सब कर दूं, और ये सब करने के चक्कर में आप ये कर भी लोगे, लेकिन एंड में ना आपको लगेगा कि मैंने दिन वेस्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने ऑर्गेनाइज होकर एक स्पेसिफिक चीज़ नहीं की। अगर आपके टाइम टेबल में ये था कि मैं आज मॉडर्न हिस्ट्री निपटाऊंगा, लेकिन आप जाके 15 जगह इधर उधर कुछ क्वेश्चंस कराए, लोग मॉडर्न हिस्ट्री नहीं की, आपके दिमाग में ये नहीं आएगा कि मैंने चीज़ें कंप्लीट कर ली, क्योंकि उनका कोई भी अकाउंट नहीं है। इसका अकाउंट है, ये डायरेक्टली रिविजन में हेल्प करेगी, ये रिकॉलिंग में हेल्प करेगी, ये आपकी मेंटल एबिलिटी को डेवलप करेगी। सो प्लीज बी स्पेसिफिक विद योर प्लान्स, कीप योर डे ऑर्गेनाइज्ड, डोंट गेट स्वेड बाय थिंग्स हियर एंड देयर, डोंट गेट इनटू फोमोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है, प्लीज इसको फॉलो करिएगा। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया सबको? नाउ कम्स अ, जैसे मैंने बोला, अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। भाई देखो, एक बात सुनो, हमारा दिमाग क्या होता है, एक मेरे को ऐसा लगता है कि एक ना नेगेटिव थॉट्स की फैक्ट्री है। सच बता रहा हूँ, मतलब ऐसे मोमेंट्स पे आके ना नेगेटिव थॉट्स आने बहुत शुरू हो जाते हैं। यार पिछले साल पेपर ऐसा आ गया था, यार उससे पहले साल ये हो गया था, इस बार ऐसा हो गया। तो भाई मेरी बात सुनो, जहाँ आप लास्ट ईयर प्रिपरेशन में थे उससे आप कुछ आगे ही हो ना, यू आर समवेयर बेटर देन योर लास्ट ईयर ना भाई, यू आर समवेयर समवॉट बेटर देन द लास्ट ईयर ऑफ योर्स ना। सो लेट द लास्ट ईयर नॉट बी अ बर्डन ऑन यू, लेट इट बी एन ऑगमेंटेशन, कि भाई मैं लास्ट ईयर ये गलतियां करके आया था, मैंने इन गलतियों पे काम कर लिया, इनको सुधार लिया, आई डिड दीज मिस्टेक्स लास्ट ईयर, आई वर्कड अपॉन देम, आई इंप्रूव्ड अपॉन देम, सो माय ओवरऑल प्रिपरेशन हैज बीन ऑगमेंटेड फ्रॉम व्हाट इट वाज लास्ट ईयर, सो व्हाई एम आई टेकिंग अ बर्डन ऑफ द लास्ट ईयर? Whenever your brain starts pouring in negative thoughts, what you have to do is you have to channelize it into something positive. देखो यार, जो लोग YPLP फॉलो कर रहे हैं कुछ टाइम से, 3-4 सेट ऑफ रिविजन हम लोग कर चुके हैं। मैं कह रहा हूँ आपने 3-4 नहीं भी किए होंगे, वैसे तो आप में से बहुत लोगों ने 3-3 तो किए ही हैं। मान लो मैं कह रहा हूँ आपने 2 किए होंगे, एक अब और हो जाएगा, मैंने आपको प्लान बता दिया। 3 रिविजन अगर आप कर चुके हो बहुत बड़ी बात होती है ना, और अगर आप उससे ज़्यादा कर चुके हो तो और भी बहुत बड़ी बात है। Anyhow, you have to tell your brain that you have done the things that are relevant. यार एक बात बताओ, क्या क्या चाहिए होता है एग्जाम में भाई? ऐसा क्या चाहिए होता है एग्जाम में? हाँ, PYQ चाहिए होते हैं, कर लिए। GS का स्टैटिक चाहिए होता है, कर लिया। रिवीजन चाहिए होता है स्टैटिक का, कर लिया। नहीं किया, कर लेंगे। CSET चाहिए होता है, कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं पहली बार CSET उठा के आज देखोगे, कुछ ना कुछ कर रहे हो ना। CSET चाहिए होता है, कर रहे हैं। नहीं किया है, आगे कर लेंगे। कितने दिन बचे हैं? 2.5 हफ्ते बचे हैं। 2.5 हफ्ते भाई, 2.5 हफ्ते बहुत बड़ा पीरियड होता है। कर लेंगे चीजें अगर जो नहीं किए हैं। ओके, इंटरव्यू के बाद तो 3 ही दिन मिलते थे एग्जाम देने के लिए। अभी तो 2.5 हफ्ते हैं हमारे पास भाई, बहुत बड़ा टाइम है, बहुत बड़ा टाइम है, हो जाएगा। जस्ट फीड योर ब्रेन विद दोज पॉजिटिव थिंग्स। मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने ये भी कर लिया, मैंने वो नहीं छोड़ा, मैंने वो नहीं छोड़ा, मेरे वहां उस PYQ में अच्छे नंबर आ रहे हैं। मैं जब CSET के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, UPSC वाले तो मेरे से हो रहे हैं, मैं जब RC सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरा RC पिछले बार से थोड़ा बेटर हो रहा है। मैं क्वांट LR में पिछले बार जो क्वेश्चंस नहीं तैयार करके गया था, मैंने उन पर थोड़ा थोड़ा काम कर लिया है। दीज आर द लिटिल पॉजिटिव थिंग्स दैट यू टू टेल योरसेल्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, टू शिफ्ट फ्रॉम दैट नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी। और वो पॉजिटिविटी क्या करती है? कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। अल्टीमेटली ना भाई, एग्जाम में ना कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा गेम होता है, बहुत ही बड़ा गेम होता है यार। जो लोग YPLP कर रहे हैं, एक बार सोच के देखो, हम लोगों ने दिसंबर में प्रिपरेशन शुरू की थी, पहले एक फेज कंप्लीट किया फरवरी तक, फिर फरवरी से लेके अप्रैल तक एक फेज कंप्लीट किया, फिर तीसरा फेज कंप्लीट किया अप्रैल से लेके मई स्टार्टिंग तक, फिर अभी चौथा फेज कर रहे हैं, फिर इसके बाद एक फेज और प्लान कर रहे हैं। 4-5 फेज ऑफ प्रिपरेशन भाई साहब, मजाक है क्या? इसमें से आधा भी कर लेता है इंसान तो भी हो जाता है भाई। एक बार PYQ मैड में कर लिए हैं, एक बार PYQ खुद से कर लिए हैं, एक बार PYQ अभी और कर लेंगे, ऐप पे आ गए हैं। क्या चाहिए और?
तो ये डरना बंद अब यहाँ से, इसके बाद एन एंड टू फियर। मेरे को बताना ये कमेंट्स में बात समझ में आई कि नहीं आई। आई वॉन्ट ईच एंड एवरीबडी टू राइट डाउन, वी विल ओवरकम every fear, we will overcome, I shall overcome every fear and aim for victory। बस I shall be victorious लिखो, ये अपने सामने लिखो, खुद को बोलो ये, I shall be victorious, I will be victorious, I will be victorious। देर आर नो एल्प्स, इसकी कहानी है, ठीक है। थोड़ा ऊपर जाओगे अगर तो मेंस जब हुआ था ना सितंबर का, उसके जस्ट पहले है ना 13-14 सितंबर के आसपास ना, मैंने एक ग्रुप पे अपने चैनल पे अंडरस्टैंड यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे एक वॉइस नोट पोस्ट किया था, देर आर नो एल्प्स करके। गो एंड लिसन टू दैट, ठीक है। चलो ठीक है भाई, हमेशा इन चीज़ों का स्ट्रेस, इन चीज़ों की नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स, एंग्जाइटी, ये सब चीज़ रहेगा। एग्जाम प्रेशर, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, मैंने हमेशा ये बात बोली है कि डर कभी भी ना प्रिपरेशन का होता, ना पेपर का होता, ना पॉजिटिव रिजल्ट का होता। डर होता है सिर्फ एक चीज़ का, नेगेटिव रिजल्ट का। उस डर को एलिमिनेट कर दो, खुद को लॉजिक देके, रीजनिंग देके, समझा के कॉन्फिडेंस भर दो खुद में। बी दैट एंटायर गैलन ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम हेयर। ऐसे ऊज करना चाहिए भाई साहब कॉन्फिडेंस आपके अंदर से, मतलब लगे कि भाई शेर आया पेपर देने। डरना नहीं है भाई, मैं हमेशा बोलता हूं द पेपर इज अंडर योर हैंड। क्वेश्चन पेपर आपके हाथ के नीचे है ना, सिर पे नहीं बिठाना है उसको। इट इज अंडर योर हैंड, अंडर योर कंट्रोल। तो आप पे हावी नहीं होना चाहिए वो, आप उस पे हावी होने चाहिए। आधे लोग ना एग्जाम में स्टार्टिंग के 10 मिनट में, 15 मिनट में खत्म हो जाते हैं, वो नहीं बनना है अपने को। अरे आएंगे फालतू क्वेश्चंस, आने दो, आने दो। ये प्रीलिम्स लास्ट प्रीलिम्स है, ये प्रीलिम्स लास्ट प्रीलिम्स होगा। टेल दिस टू योर सेल्फ, टेल दिस टू योर सेल्फ अगेन अगेन अगेन। हाँ भाई, होगा कि नहीं होगा, आंसर इट। अरे बोल के, मन में नहीं। ये प्रीलिम्स लास्ट प्रीलिम्स होगा कि नहीं होगा? गुड, ठीक है। लास्ट में मैं एक बात बोलता था, वापस से उसको रिपीट करूंगा। जिन भी लोगों को पिछले फेलियर्स का, फलाने ढिमाके का, पिछले अटेम्प्ट्स का, स्कूल टाइम का, कॉलेज टाइम का, घर का, कहीं का भी स्ट्रेस हो रहा है ना, यू डू नॉट हैव द बैगेज ऑफ फेलियर्स माय डियर फ्रेंड, व्हाट यू हैव आर द मेडल्स ऑफ सर्वाइवल। एक एक इंसान यहाँ तक पहुँचा है, सर्वाइव करके पहुँचा है, मजाक नहीं है, ठीक है, मजाक नहीं है। मेरे को पता है प्रिपरेशन में कितनी मेहनत लगती है, जब आसपास कितनी नेगेटिविटी होती है। देखी है मैंने वो नेगेटिविटी, अभी भी देख रहा हूँ, है ना। इंसान के अराउंड बहुत नेगेटिविटी होती है, लेकिन और कोई ना उसकी कंडीशन समझ नहीं पाता है। सिंपल सी बात ये है, तो समझाओ भी मत, कोई बात नहीं। आज तक खुद से लड़े हो, खुद के बैटल्स खुद से लड़े हो ना। हर एक बैटल जो सरवाइव किया है उसके लिए एक मेडल मिला है आपको, इसलिए यहाँ खड़े हो आज। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए रिजल्ट का, एग्जाम का, इस सब का बैगेज नहीं होना चाहिए दिमाग पे, है ना। देयर शुड ओनली बी, यू शुड बी अ वॉरियर नाउ, बस वॉरियर माइंडसेट, बस। और वॉरियर का क्या माइंडसेट होता है? रणभूमि में उतरूंगा और शौर्य ऐसा दिखाऊंगा कि चीर दूंगा, बस। डेली इस कॉन्फिडेंस से खुद को भरना है, बस, ठीक है। शायद वीडियो लंबी हो गई, मेरे को बनानी थी लंबी, बट ये चीज़ें मेरे दिल की बहुत क्लोज हैं, क्योंकि मैंने वो लाइफ ना जी है बहुत लंबे वक्त तक, बहुत लंबे वक्त तक जी है, तो इनग्रेन्ड है मेरे अंदर। मैं कभी नहीं इस चीज़ से हट सकता, निकल सकता, डिटैच कर सकता खुद को कि क्या इमोशन होता है। इसलिए ये चीज़ आपसे कह पा रहा हूँ। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। मैं बहुत 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 ज़्यादा, मेरी प्रेयर्स, मेरी जितनी भी मेरी प्रेयर्स हैं, जो भी मेरे पास है, वो सब आई एम गिविंग इट टू यू। मेरी सारी गुड विशेस, सारी सब कुछ बहुत अच्छे आपके अगले 15-17 दिन जाएँ, बहुत अच्छे से आप पढ़ें, आपकी तबीयत ठीक रहे। ऑल माई बेस्ट विशेज़ टू यू। वी हैव वर्कड रियली हार्ड। मैं मतलब ये फेयरवेल स्पीच नहीं है मैं नहीं
ये फेवरेट स्पीच नहीं है। मैं CSAT के जो 2023 के क्वांट रीजनिंग के क्वेश्चन बचाए वो कराऊंगा, और सोच रहा हूँ कि अपडेटेड भी करा दूँ आपकी एक एटलीस्ट, हालांकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, बट सोच रहा हूँ कि एक कराई दूँ, और हो सकता है कुछ रिवीजन सेशंस भी प्लान करें हम, तो ठीक है वो सब हो जाएगा। मैं कोई फेवरेट स्पीच नहीं दे रहा हूँ, बस इमोशंस में कुछ बात कह गया, ठीक है, लेकिन जो बात बोले उनको याद रखना है। ओके, ठीक है, चलिए वाइंड अप करते हैं इस वीडियो को। I hope this was helpful at all. Please drop a comment about the things that I've said. I'll be I'll be reading to those things. I'll be replying to those things. Thank you so much, everybody. This is Satyam Jain signing off. Till we meet next time. I am giving everything that I have in terms of goodwill, in terms of good wishes, in terms of good karma, in terms of good prayers, everything to you. Vijay Bhava. Jai Hind. Dhanyavad.